Yes. So, good morning, all of you. Let us start with today's lecture. In the last lecture, we have seen, how to draw the FBD of a figure. Okay. So, let us revise those topics quickly. Then we will start with our today's problem. Okay. So, it's 9:15 now. Let us start. Please tell everyone to join quickly. Please tell all of them to join quickly. Okay. So, last time I gave you one problem. Okay. I told you that. Okay. So here we have drawn one circle like this, correct? And I showed you two planes. Okay, one plane was like this, correct? One plane was like this, and another plane was something like this. Okay. Then what was the angle given in that case? On the right For hand side. 30 and at left hand side 40. Okay, right hand side 30. Just a minute. Huh? Okay, here 30 degree on this side, and on this side 40 degree, correct? Na? Okay. So last time I told you that this problem, in case of FBD, what we need to do, first you have to draw the reaction forces. Okay, weight दिखाना है. Weight कितना दिया था for this body? What was the weight given? Please tell me. Yes, weight को मैंने आपको बताया था, सेंटर से हमेशा weight आता है, बराबर है? Yes or no? This is not Yes, sir. working due to Yes, internet sir. problem. Na, it is little bit slow. That pen is not working properly. Okay. तो सेंटर से वेट कितना था अपना बॉडी का? हाउ मच वाज द वेट गिवन फॉर द सिलेंडर? यस, सिलेंडर का वेट कितना दिया था? 980 Newton. कितना? 10 kg. 98 Newton. 10 kg. ओके, 10 kg दिया था, करेक्ट. 10 kg दिया हुआ था, तो 10 kg 10 इंटू 9.8, सो आई विल राइट इट 98 न्यूटन. ओके, सेंटर से वेट दिखा दिया था आपने. देन व्हाट डिड आई से? यू हैव टू शो द रिएक्शन. ओके, perpendicular to the surface, and reaction forces will always pass through the center of the cylinder. बराबर है कि नहीं? ये बताया था मैंने आपको, याद है? Like this, correct? And one more reaction will be like this. Okay, last time I showed you how to use the Lami's theorem, correct ना? तो यहाँ पे हम लोग ने एक रिएक्शन दिखाया था. थोड़ा सा लैग हो रहा है, इसकी वजह से ड्राइंग करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है. ओके, so here we had a reaction at point A. ओके, तो यहाँ पे एक रिएक्शन था. तो ये रिएक्शन का नाम हम लोग ने क्या दिया था? आर ए, बराबर है ना? एंड दिस रिएक्शन वाज आर बी, बराबर है कि नहीं? बोलो. आर ए और आर बी लिया था ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. एंड आई टोल्ड यू दैट दिस फोर्सेस विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, करेक्ट?
देखो ऐसा था. Okay, so last time I told you that this problem which we solved with Lami's theorem, this we can also solve with the help of conditions of equilibrium, correct? Yes or no? So now you tell me that how you will apply the conditions of equilibrium. So first what I will do, okay, I will draw one force like this. Okay, in red color only we will show. From here we will draw one vertical, okay, and one horizontal. Okay, similarly here one horizontal line I will draw and one vertical line I will draw. Okay, is it clear? देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर बना है, एक यहाँ पे बना है. देन यू नो दैट यू नो वॉट एवर एंगल इज हियर, यहाँ पे अगर एंगल 40 डिग्री है, देखो यहाँ पे बराबर है, तो ऊपर भी एंगल क्या रहेगा बोलो. अगर यहाँ पे एंगल 40 है तो 40 यहाँ पे किधर रहेगा, आप बताओ मेरे को. किसके साथ 40 रहेगा यहाँ पे? y एक्सिस के साथ. यस, वाई एक्सिस के साथ, करेक्ट. वर्टिकल के साथ 40 रहेगा. तो ये जो कंपोनेंट है आपका वर्टिकल वाला, ये रहेगा आपका, देखो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, तो ये कंपोनेंट आपका रहेगा आर बी कॉस 40, ठीक है. और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका क्या रहेगा बोलो फिर? ये रहेगा आपका आर बी साइन 40. आर बी साइन 40. ये एक्चुअली यहाँ पे ना इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दैट्स वाई दैट इंटरनेट लैगिंग की वजह से ना पेन बराबर चल नहीं रहा है. ओके, सो काइंडली जस्ट नो मैनेज. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी, लेट मी नो. देखो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे एंगल 30 कहाँ पे रहेगा? वर्टिकल के साथ रहेगा, बराबर है. तो ये यहाँ पे कंपोनेंट का नाम क्या रहेगा? आर ए कॉस 30, ठीक है. एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्या रहेगा बोलो? क्या रहेगा ये? आर ए साइन 30. ओके, आर ए साइन 30, ठीक है. So after writing this value, now we will use conditions of equilibrium, that is summation f of x is equals to 0, okay, and summation f of y is equals to 0, ठीक है. तो f of x और f of y में आप मेरे को बताओ अभी, f of x x डायरेक्शन में कौन सा फोर्सेस दिख रहा है आपको, बोलो जरा. एक आर बी साइन 40 दिख रहा है और एक कौन सा दिख रहा है बोलो? आर ए साइन 30 ना. हाँ, तो मैं लिखूंगा पहला, that is RB sin 40, okay, RB sin 40 minus RA sin 30, that is equals to 0, बराबर है ना. और कोई फोर्सेस है क्या एक्स डायरेक्शन में? देखो जरा, नहीं है ना. ओके, सो लेट अस नेम दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. सेकंड इक्वेशन क्या आएगा देखो, वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्सेस है. देखो ये आर बी कॉस 40, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है. तो ये लिखेंगे हम लोग आर बी कॉस 40, ओके, आर बी कॉस 40. नेक्स्ट फोर्स कौन सा है हम लोग का? प्लस ये वाला फोर्स देखो, cos 40. हाँ, प्लस क्या रहेगा? आर ए कॉस 30, ओके, आर ए कॉस 30, ओके, दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 98 है ना. ये जो फोर्स है
इक्वल्स टू जीरो जो हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये क्या रहेगा यहाँ पे, जरा बताओ। -98 है ना, नीचे की तरफ जा रहा है देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा -98 जो इसका वेट है, देखो -98 इक्वल्स टू जीरो, ऐसा है ना आपका इक्वेशन, बराबर है कि नहीं? सर -98 Yes, क्यों sir. लिखे हमने? अरे ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है ना, 98 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे सर, और y नीचे डायरेक्शन में जा रहा इसलिए है. ना। हाँ तो नीचे जा रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा फोर्स? नेगेटिव सर। तो क्या लिखा फिर मैंने, नेगेटिव लिखा ना, बराबर है ना? यस सर। बराबर है ना? सबमिशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो, आपका जितना भी फोर्सेस है, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हैं, समझा कि नहीं समझा, बोलो, बराबर है? यस सर। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, आपका इक्वेशन में, सॉरी कैल्सी में मोड पे जाओ, मोड पे जाके इक्वेशन में जाओ, देखो टू नंबर रहेगा देखो इक्वेशन का, उसमें आप साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है ना वो सिलेक्ट करो, कैल्सी में मोड पे जाओ, शिफ्ट के बाजू में ही रहेगा देखो, मोड करके रहेगा, दिखा सबको? हाँ सर वो हाँ आता है। सर, हाँ, मोड पे जाने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन का ऑप्शन वो इक्वेशन 5 5th नंबर पे। फिफ्थ पे क्या, ठीक है, तो उस पर फिफ्थ पे क्लिक करो, फिर उस पे आपका ये कौन सा है देखो ना, तीन इक्वेशन है ना, ए बी सी वाला रहेगा आपका, ये जो इक्वेशन है आपका, दिस इज योर ए बी सी वाला इक्वेशन, बराबर है कि नहीं, बोलो? ये आप निकाल पाओगे, आर ए आर बी आर सी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, ए बी सी। साइमल्टेनियस इक्वेशन देखो, सेकेंड नंबर रहेगा शायद ऊपर से, सेकेंड या थर्ड रहेगा मेरे ख्याल से, थर्ड नंबर है, ए प्लस बी ए एक्स, वो इक्वेशन आपका ऐसा रहेगा देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन में। मिला क्या आपको इक्वेशन एलसी में? हेलो, डिड यू गेट दैट Yes, इक्वेशन इन sir. योर एलसी? हाँ, बोलो क्या आया? सर RA 52.14 आर ए आर आई 52.14, ओके, और RBR 67.03। 67.03, ठीक है। अभी आप ये देखो कि लास्ट टाइम हम लोग का जो आंसर आया था लैमिस थ्योरम से, वो क्या आया था, और ये आंसर क्या, आर ए बाई लैमिस थ्योरम क्या आया था, देखो जरा चेक करो। सर पहला वाला RB है सर, ये वो स्टार्ट अच्छा, पहला RB और वाला, RA इंटरचेंज हो गया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, रुको, ये आपका आर बी आया, ये आपका आर ए आया, ठीक है, तो न्यूटन में आ रहा है, ये भी न्यूटन में, ठीक है। अभी बोलो, आरबी का आंसर लास्ट टाइम जो आपका लैमिस थ्योरम से आया था वो कितना आया था, बताओ जरा। 67.703 वही आया था सर। आर ए और आरबी लैमिस थ्योरम से जो हम लोग ने निकाला है वो बराबर आया क्या, मैच हुआ क्या? हाँ सर। हुआ ना? Yes, sir. हाँ, दैट मीन्स व्हाट, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स with the help of either by Lami's theorem or by using condition of equilibrium also। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. फाइन, चलो, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, अभी आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूँ, देखो। सर रिकैप था ना जो उस दिन की थे। हाँ, उस दिन का जो मैंने आपको सिखाया था ना, वो मैंने आपको बाय लैमिस थ्योरम सिखाया था, बराबर है? वी हैव लर्नड हाउ टू यूज लैमिस थ्योरम फॉर अ सिलेंडर। टुडे व्हाट वी हैव लर्नड, how we can use conditions of equilibrium also for the same problem, correct? Means you have two options, you can either solve the problem by using Lami's theorem, or else you can also solve the problems by using the conditions of equilibrium, yes or no? So did you get it or not? आया समझ में? यस सर, गेट इट। ओके, मैं जरा ये पेंट को ना एक बार बंद करके वापस चालू करता हूँ, ये थोड़ा सा है ना लैगिंग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। जस्ट एक बार बंद करके वापस चालू करता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
वाइट स्क्रीन आया? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में वन वी विल सी द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो अगर आपका रोलर सपोर्ट रहेगा तो आपको समझ में आया क्या आएगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट वी विल सी, ओके, दैट इज अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके। टाइप्स ऑफ सपोर्ट में रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, ठीक है। नाउ सपोज इफ यू हैव अ बीम लाइक दिस, ठीक है, एक बीम लिया है हम लोग ने। नाउ दिस इज आवर बीम, okay. So now suppose if this beam is kept on some rollers like this, यहाँ पे एक रोलर रखा है मैंने बीम के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे एक रोलर रखा है, ओके। दिस बीम इज रेस्टिंग ऑन दिस टू रोलर्स, ओके। So this type of support is called as roller support. Whatever I am drawing right now, this support is a roller support, okay. Now in this, suppose the weight of beam is given, okay, self weight. What I am saying, in this, the self weight of beam is given as 10 kg. सेल्फ वेट दिया हुआ है बीम का, कितना है, 10 kg दिया हुआ है, ठीक है। एंड नाउ सपोज फोर्सेस आर आल्सो एक्टिंग ऑन दिस बीम। देखो यहाँ पे सपोज एक फोर्स है, फर्स्ट फोर्स, दिस इज वन फोर्स, ओके, एंड दिस इज अनदर फोर्स, ओके। So this is your force F1, okay. And suppose this is your force F2, ठीक है। तो फोर्स F1 F2 हम लोग ने मार्क कर लिया। नाउ दिस इज योर पॉइंट ए, ये वाला जो रोलर सपोर्ट है पॉइंट ए, एंड दिस वन इज योर पॉइंट बी, this one is your point B, ठीक है। So now here this is your distance D1, okay. Now it is acting at a distance of 2 मीटर। ये F1 F2 जो है, okay, ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, okay. So now this is acting at a distance of 2 मीटर, this is also acting at a distance of 2 मीटर, and this is also acting at a distance of 2 मीटर, ठीक है। मतलब F1 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ओके। सो दिस डिस्टेंसेस आर गिवन लाइक दिस, ये समझा। तो अभी मेरे को ये बताओ, इफ आई वांट टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस बीम, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होएगा, आप मेरे को बताओ, क्या क्या फोर्सेस किधर किधर आएगा। रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन क्यों आएगा सबसे पहले। देखो रिएक्शन कभी आता है, वेन एवर यू नो एनी डायरेक्शन, इफ यू आर गिविंग द कंस्ट्रेंट इन दैट डायरेक्शन। जैसा अगर मैं ये ऊपर से फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये फोर्स F1 जो है ऊपर से अप्लाई करता हूँ, तो ये बीम जो है ये नीचे जा सकता है क्या, बताओ। नहीं जाएगा ना, कितना भी फोर्स अप्लाई करूँ यहाँ से ये बीम नीचे नहीं जाएगा, बराबर है। तो इसके वजह से यहाँ पे कोई तो फोर्स है जो उसको नीचे जाने से रोक रहा है। सो दिस इज योर फोर्स एट पॉइंट ए, रिएक्शन। रिएक्शन क्यों आ रहा है, मतलब ये जो फोर्स है ये इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है, बराबर है कि नहीं बोलो। यहाँ पे ए पे, यहाँ पे जो फोर्स है ये इसको नीचे जाने से रोक रहा है, बराबर है।
और यहाँ पे फोर्स बी पे भी एक है जो इसको नीचे जाने से रेजिस्ट करेगा। तो जो भी डायरेक्शन में हम लोग रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे आपको क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है। बोलो बराबर है कि नहीं, आया समझ में? तो यहाँ पे बी पे रिएक्शन ऐसा आएगा, देखो एरो का डायरेक्शन देखो ऐसा आएगा ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन एट पॉइंट ए जो है वो आर ए ऐसा आया, और रिएक्शन एट पॉइंट बी आर बी ऐसे आएगा। देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। ये रिएक्शन समझा सबको, रिएक्शन क्यों आ रहा है? हम लोग जब भी ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये नीचे के डायरेक्शन में बीम नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? दिस रोलर्स आर गोइंग टू रेजिस्ट, यस और नो, बराबर है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर हम लोग सपोज एक्स डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स ऐसा अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर मैं कोई भी फोर्स इसमें ऐसा एक्स डायरेक्शन में अगर अप्लाई करता हूँ तो ये मूवमेंट होएगा कि नहीं, इसमें बीम जाएगा, बीम मूव होएगा कि नहीं, रोलर के ऊपर से होएगा ना। तो मतलब एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन सिर्फ कौन से डायरेक्शन में आएगा, इसमें वाई डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहां का डायरेक्शन जो, अगर वो मोशन हम लोग ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया वाई डायरेक्शन का। अभी भी अगर हम लोग ने एक्स डायरेक्शन में ऐसा फोर्स अप्लाई किया, ओके, so this beam is going to move along x direction if I apply the force like this. So this is your reaction will not come, okay, because it is free to move along x direction, yes or no, correct? Okay, Yes, so sir. now whenever you are going to draw the FBD, देखो ये फिगर का मैं अभी FBD जब भी बनाता हूँ तो क्या आएगा, देखो पहला मैंने ये बीम बना लिया, ठीक है, ये बीम बना लो आप वापस। ओके, बीम बना लिया। नेक्स्ट आई विल ड्रॉ दी रिएक्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो है, जो भी रिएक्शन है हम लोग ने दिखाया, यहाँ पे एक रिएक्शन बताओ आर ए, और ये रिएक्शन यहाँ पे आएगा, दिस व्हाट हैपेंड, ओके, दिस इज वर्टिकल। दैट पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा आज। ओके, देखो यहाँ पे अपना आ गया पहला रिएक्शन आर ए, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन आ गया आर बी, है कि नहीं, बोलो बराबर है। तो जो भी हम लोग ने एग्जिस्टिंग फोर्स था आर ए और आर बी का, वो हम लोग ने दिखा दिया, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डी में, फ्री बॉडी डायग्राम में, ये F1 पहले से था, मतलब एग्जिस्टिंग फोर्स पहले से कौन सा था, F1 था अपना, बराबर है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, F1 दिखा दो आप, यहाँ पे पहला फोर्स आपका F1 था, बराबर है, आप F1 दिखाओ। नेक्स्ट फोर्स आपका कौन सा है, यहाँ पे पहले से था ये फोर्स, तो ये आपका फोर्स हो गया F2 एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। ठीक है, तो अभी इसमें F1 F2 दिखा दिया। अभी FBD कंप्लीट हो गया क्या फिगर का आपके हिसाब से, बोलो। हम लोग ने क्या किया, जो भी रोलर है उसको निकाल के क्या बताया, वी हैव रिप्लेस दैट रोलर विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, बराबर है। तो रोलर सपोर्ट में फिर कितना रिएक्शन आ रहा है, एक ही रिएक्शन आ रहा है, बराबर है कि नहीं, बोलो यस और नो। हेलो, यस सर। हाँ, अभी इसमें आपको एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, सेल्फ वेट। देखो अभी भी बीम में सेल्फ वेट दिया रहता है ना, सो ऑलवेज मेक इट अ नोट दैट सेल्फ वेट ऑफ द बीम विल ऑलवेज एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बीम। सेल्फ वेट कहाँ से एक्ट करेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट ओके एट द सेंटर, okay, it will always act at the center
ऑफ द बीम। ओके, तो यहाँ पे बीम का सेंटर कितना रहेगा, देखो टोटल डिस्टेंस बीम का कितना मीटर है, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 मीटर। तो 6 का आधा कितना रहेगा, यहाँ पे इसका हाफ यहाँ पे रहेगा, बराबर है। सो दिस वेट विल एक्ट लाइक दिस फ्रॉम द सेंटर, वी विल शो दैट हियर द वेट इज एक्टिंग लाइक दिस। ओके, and this is the weight, W. Okay, so this distance यहाँ से यहाँ पे आएगा, and distance from here till here, तो डिस्टेंस कितना रहेगा, बोलो बोलो डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा 3 मीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 3 मीटर। ठीक है, सो नाउ वी हैव ड्रॉन दी कंप्लीट FBD ऑफ दिस फिगर। आपको समझा कि नहीं समझा? So this is very important whenever you solve the any problem, okay, so you should know how to draw the FBD। तो FBD हम लोग ने कौन सा सपोर्ट का बनाया अभी, बोलो रोलर सपोर्ट का बनाया, रोलर सपोर्ट। ठीक है। सो शुड आई इरेज दिस नाउ, Yes, sir. आपने नोट डाउन कर लिया ये? ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट फिगर। ओके, रोलर सपोर्ट के बाद नेक्स्ट सपोर्ट वी विल सी दैट इज अ हिंज सपोर्ट। ओके, तो हिंज सपोर्ट, हिंज कहाँ पे रहता है, डोर वगैरह में रहता है हिंजेस। Okay, so I will name this support, okay, as hinge support। ठीक है, तो hinge support कैसा दिखता है, देखो। Now if we have a beam like this, okay, ये आपका बीम हो गया। Now this beam, you know, it is pin connected। यहाँ पे हम लोग इसको पाओ एंड करके बीम को, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा ये रहेगा, देखो ऐसा हिंज सपोर्ट, ऐसा हम लोग सिंबल दिखाते हैं लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पे पिन कनेक्टेड है, यहाँ से एक पिन पिन से कनेक्टेड है बीच में, ठीक। सो दिस इज योर पॉइंट ए और हिंज। नाउ हियर इफ यू हैव अ रोलर लाइक दिस, यहाँ पे हिंज और एक रोलर दिखाया मैंने, ठीक है। दिस इज वी आर शोइंग अ रोलर एट पॉइंट बी। ओके, यहाँ पे ए पे हम लोग ने हिंज दिखाया और बी पे हम लोग ने क्या दिखाया, रोलर सपोर्ट दिखाया, ठीक है। एंड सिमिलरली लाइक द प्रीवियस वन वी विल शो हियर वन फोर्स इज एक्टिंग। ओके, so this is your force F1, okay, and here one more force is acting, this is your force F2। ठीक है, अब फोर्सेस का डायरेक्शन बता दो। This is your force F1 and this one is your force F2, ठीक। and this distance again you show, this is 2 meter, this is also 2 meter and this is also 2 meter, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्टेंसेस भी दिखा दिया। नाउ सेल्फ वेट अगेन लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम, the self weight of the beam is given as, self weight is given as 10 kg। ओके, 10 kg दिया हुआ है सेल्फ वेट। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ ये हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन आ सकता है। अभी मेरे को ये बोलो, अगर हम लोग ने ऊपर F1 से अगर अप्लाई किया फोर्स, देखो हिंज सपोर्ट मतलब सबसे पहले क्या है, देखो ये आप समझ लो। जस्ट अ मिनट, आई विल, मेरा वीडियो दिख रहा है आपको सबको?
Yes, sir. ऑल ऑफ यू कैन सी मी ना? ओके, देखो ये आपको पेन दिख रहा है, देखो पेन, देखो ये हिंज सपोर्ट मतलब ऐसा है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू पिन ऑन माय वीडियो, ओके, तो आपको वो दिखेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो इन दिस हिंज सपोर्ट, ये ऐसा है आपका, अगर हम लोग ने ऐसा फोर्स अप्लाई किया तो ये नीचे जा रहा है। इफ आई अप्लाई द फोर्स लाइक दिस, इट इज गोइंग डाउन, गोइंग अप लाइक दिस, ओके। नाउ इफ यू कीप अ रोलर, यहाँ पे एक रोलर रख दिया और साइड में इस तरफ हिंज है आपका, लेफ्ट साइड में यहाँ पे रोलर रखा है, तो अभी क्या होगा, हम लोग ऊपर से जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो नीचे जाएगा क्या, बोलो। यहाँ पे नीचे रोलर है No, और sir. यहाँ पे एक साइड में हिंज है, ऊपर से आप फोर्स अप्लाई करो तो ये नीचे नहीं जाएगा, बराबर है। तो दैट मीन्स फॉर अ हिंज सपोर्ट वी विल ड्रॉ, यू विल हैव अ रिएक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन। देखो अभी व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है सबको, व्हाइट स्क्रीन आगे सबके सामने। Yes, sir. देखो अभी मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, ओके। सो okay, so okay, so in this hinge support, first you will get a reaction here, okay, along y direction. ये क्लियर हो गया आपको? ऊपर से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जाएगा नहीं ना नीचे, करेक्ट ना? तो here we are showing one reaction. Okay. So reaction along y direction is ry, they are writing, okay. यहाँ पे एक रिएक्शन आ गया देखो y डायरेक्शन में। आप जब ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये नीचे नहीं जाएगा, बराबर है कि नहीं? करेक्ट। और बी पे भी यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, बोलो करेक्ट है। यहाँ पे बी पे भी एक रिएक्शन आएगा, जब भी आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हो फोर्स तो ये नीचे नहीं जा रहा है, बराबर है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे बी पे भी एक रिएक्शन दिखाएंगे, ओके। तो वी आर अप्लाइंग अ रिएक्शन इन आर बी, ठीक है। अच्छा, आर ए और आर बी सबको क्लियर हो गया। अभी मेरे को बताओ, अगर आपने लास्ट टाइम हम लोग जब भी रोलर सपोर्ट में था तो फोर्स अप्लाई कर रहे थे एक्स डायरेक्शन में, वो घूम रहा था, लेकिन हिंज सपोर्ट में, अभी देखो मैं वापस वो वीडियो पे जा रहा हूँ। अब देखो वीडियो आ गया मेरा, दिख रहा है सबको? ये देखो दिख रहा है, ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जो पेन दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. देखो लास्ट टाइम आपने कैसा, रोलर में ऐसा था, ऐसा था, तो ये एक्स में मूव हो रहा था, मतलब रोलर के ऊपर से ये मूव होएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। लेकिन जब भी हम लोग ने हिंज सपोर्ट में ऐसा इसको फिक्स कर दिया, एक पॉइंट पिन कनेक्टेड है और एक यहाँ पे, अभी मैं अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, सो विल इट गो अलोंग एक्स डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा क्या? नो सर। बोलो, नहीं होगा ना। मतलब हम लोग ने क्या किया, जब भी हम लोग ने हिंज सपोर्ट अप्लाई किया, बराबर है। सो इफ वी अप्लाई अ फोर्स, इफ वी अप्लाई अ फोर्स, सबको दिख रहा है अभी? ये देखो यहाँ पे हम लोग ने एक्स डायरेक्शन में अगर एक कोई फोर्स अप्लाई किया, सो हियर इट इज नॉट गोइंग टू मूव, हियर देयर विल बी सम रेजिस्टेंस along x direction, बोलो yes or no? So it is Yes. not to move along the x direction, बोलो correct है? Okay, so that means whenever you are having a hinge support, there will be a reaction, then two reactions will be there, एक along y रहेगा और एक along x रहेगा, तो ये rx आएगा यहाँ पे। rx क्यों आ रहा है, सबको समझा? ये जो पिन है, ये पिन आपको एक्स डायरेक्शन में जाने को नहीं देगा। लास्ट टाइम रोलर के ऊपर से रोल होके जा रहा था वो, लेकिन रिएक्शन में कभी रिएक्शन आ रहा है जब भी आपने जो एक्स डायरेक्शन है, ओके, यू हैव कंस्ट्रेंट द मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, बराबर है कि नहीं, बोलो समझा कि नहीं समझा, बोलो। देखो रिएक्शन क्यों आ रहा है ना, ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, ओके। अगर ये नहीं समझा आपको रिएक्शन क्यों आ रहा है,
So, unnecessarily just you will not understand the basic concept of mechanics, why we are doing this thing. First, you need to understand that why you are doing, why you are making the reaction. Reaction कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है. ओके, देखो ये हम लोग का पहले से एग्जिस्टिंग फोर्सेस जो है वो मैंने दिखा दिया आपको. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्सेस आप बता दो. ओके, ये आपका फोर्स हो गया F1 और ये आपका फोर्स हो गया F2. ठीक है, दिस टू वेर द एग्जिस्टिंग फोर्सेस, जो पहले से था. तो जो पहले से जो फोर्सेस है उसको दिखाने का, और हम लोग ने क्या किया, जो भी सपोर्ट्स को निकाल के हम लोग ने क्या किया, वी हैव रिप्लेस्ड दो सपोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन. यस और नो, करेक्ट. ओके, सो नाउ इन दिस सेल्फ वेट इज ऑल्सो गिवन. तो सेल्फ वेट कैसे आएगा, फिर देखो अभी हम लोग का ये कितना था डिस्टेंस, 2 मीटर था. ओके, हियर आल्सो 2 मीटर एंड हियर आल्सो वी हैड डिस्टेंस 2 मीटर. ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसके सेंटर, इसका सेंटर किधर रहेगा, यहाँ पे किधर तो रहेगा, बराबर है. तो हम लोग का वेट कितना है इसमें, देखो यहाँ पे सेंटर से एक्ट करेगा ये फोर्स. बोलो बराबर है कि नहीं. देखो ऐसा एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये क्या हो गया, वेट हो गया. अभी सेल्फ वेट कितना दिया है, 10 kg दिया है. तो क्या आएगा यहाँ पे, 10 इंटू 9.8, बराबर है कि नहीं बोलो. तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, 10 इंटू 9.8. तो आपका कोई भी वेट अगर केजी में दिया है तो वो आपको दिखाना है ऐसा, एंड इट विल एग्जैक्टली एक्ट टू द सेंटर ऑफ द बीम. So if the total distance is 6 meters, so what is this distance from here till here? बोलो डिस्टेंस कितना रहेगा, आप ही बताओ. 3 मीटर, करेक्ट. यहाँ पे डिस्टेंस 3 मीटर है फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑल्सो 3 मीटर. ये पॉइंट ए से 3 मीटर है और ये पॉइंट बी से भी 3 मीटर है. देखो सबको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया एफबीडी का. बोलो कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया ऐसा कुछ भी, ये समझ गया तो इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, समझ लो. बोलो बराबर है. रोलर के बोलो, केस बोलो, में बताओ। रोलर के केस में वो वाई डायरेक्शन में क्यों बोलो. रेजिस्टेंस रहेगा, वो एक बार फिर से समझाइए ना. हाँ बताता हूँ, एक सेकंड. देखो मैं वीडियो पे आ रहा हूँ, आप में ये स्क्रीन पे देखो. ये देखो आपको ये पेन दिख रहा है कि नहीं, पेन दिख रहा है आपको अभी. यस सर. देखो अभी मैंने ये पेन को, ये समझो मेरा जो ये है फिंगर्स है, दिस आर द रोलर सपोर्ट. ओके, सो इफ आई होल्ड द बॉडी लाइक दिस, देखो इसके ऊपर ये बीम ऐसा रेस्ट कर रहा है ये रोलर पे. ठीक है, यहाँ पे देखो ये रोलर पे रेस्ट कर रहा है. आप अभी अगर ऊपर से फोर्स अप्लाई करोगे इस पे, कितना भी फोर्स अप्लाई करो, ये नीचे जाएगा क्या, बोलो. नहीं. आप ये थंब से फोर्स अप्लाई करो तो नीचे जाएगा क्या, नहीं जा रहा है. समझे, देखो ये ऐसा मैंने ऐसा होल्ड किया. सपोज दिस टू आर दी रोलर्स, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने रोलर दिया हुआ है. आप अपवर्ड डायरेक्शन से ऐसा फोर्स अप्लाई करो इस पे, तो ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मेरे को बोलो. नीचे नहीं जाएगा, नीचे सपोर्ट है तो नहीं जाएगा ना. हाँ सपोर्ट है तो नहीं जाएगा ना. मतलब सपोर्ट क्या कर रहा है, उसको नीचे जाने से रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है. बराबर है. तो कोई भी सपोर्ट जब भी रेजिस्ट करता है, मतलब वहां पे क्या है, एक फोर्स आ रहा है, इमेजिनरी फोर्स है जो आपको दिख रहा नहीं लेकिन है, जो उसको नीचे जाने से रोकता है. आर यू गेटिंग इट और नॉट. यस सर. बराबर है. तो वही इसलिए यहाँ पे भी देखो हिंज सपोर्ट में भी क्यों आया, यहाँ पे जब भी हम लोग ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, ये फोर्स F1 अप्लाई कर रहे हैं, ये नीचे नहीं जाने दे रहा ना, ये पिन इसको रोक रहा है नीचे जाने से. बराबर है. तो ड्यू टू दैट रीजन वी आर गेटिंग RY अलोंग Y डायरेक्शन. लेकिन लास्ट टाइम क्या था, रोलर में वो रोल हो रहा था, X डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे थे ना, तो इट वाज रोलिंग अलोंग X डायरेक्शन, वो पूरा बीम मूव हो रहा था. सपोज आप कोई एक रूलर ले लो, उसको 2 चौक के पीसेस के ऊपर रखो. ठीक है, तो आप अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूव होगा ना स्केल चौक के ऊपर से, होगा ना.
यस सर। रोलर मतलब आप वो बच्चे लोग का गाड़ी भी देख लो, जो खेलते हो आप टॉयज से, है ना? तो हम्म। टॉयज में जो व्हील रहता है वो कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। जो हाँ। कोई भी व्हील रहेगा, तो आप कोई भी वो जो कार रहता है, छोटा बच्चे लोग का गाड़ी रहता है, उसको पुश करोगे तो आगे जाता है ना, यस एक्स सर। डायरेक्शन में मूव होएगा। लेकिन आप अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे वो कार पे, तो मूव होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। लेकिन एक्स में जैसे ही आप धक्का मारते हो कार को, तो हम्म। दैट कार विल गो अलोंग एक्स डायरेक्शन, मूव होता है वो। हाँ समझा। तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल याद रखो, कार का जो भी टॉय कार रहता है उसको हम लोग पुश करेंगे तो मूव होता है अलोंग एक्स, लेकिन वाई पे वो मूव नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, ओके तो सर। इसलिए रिएक्शन आता है। थैंक यू। ठीक है, ओके। अभी सर देखो। वो हाँ सर बोलो। ऐसे तो सर जो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है वो भी एक हम्म। टाइप का रिएक्शन फोर्स ही है ना? हाँ, वो फ्रिक्शन मतलब क्या है? वो रेजिस्टेंस बॉडी को, मतलब कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है ग्राउंड। ठीक है, जो भी ये सर वो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, वो आपको कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स, ऑपोजिट तो टू द सर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, तो सर वो रिएक्शन फोर्स ही है ना एक टाइप का मतलब? रिएक्शन मतलब नॉट एग्जैक्टली रिएक्शन, यू कैन से, आप एग्जैक्टली उसको रिएक्शन नहीं बोल सकते हो। फ्रिक्शन मतलब क्या है? इट इज द रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस जितना रफ रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, समझे कि नहीं? तो आप उसके यस सर। साथ इसमें है ना, इसके साथ मिक्स मत करो। ओके। फ्रिक्शन ओके सर। और रिएक्शन फोर्स नहीं हो सकता ना? नहीं, उसमें नहीं आएगा वो। ठीक है, ओके। So now next support which we will learn, that is your fixed support. Okay, fixed support. देखो, so now suppose if you have a beam like this, फिक्स सपोर्ट मतलब क्या हो सकता है? कहाँ पे देखा है आपने ऐसा टाइप का सपोर्ट? देखो, ये अगर सपोज एक वॉल है, ये वॉल के अंदर है ये बीम, ये आपने कहाँ पे देखा है ऐसा टाइप का सपोर्ट? याद करो जरा। पिलर्स। The nail in the ये wall. ऐसा, हाँ, नेल इन द वॉल भी आप बोल सकते हो, और एल्स नेल इन द वॉल इज अ बेस्ट गुड एग्जांपल यू कैन से। और एल्स कभी भी स्विमिंग पूल वगैरह आपने देखा रहेगा, उसमें मालूम है एक ऐसा एक्सटेंडेड बीम रहता है, एक साइड फिक्स रहता है, यहाँ पे जो यस डाइवर सर। रहता है उस पर जंप करता है ना? तो ये फिक्स सपोर्ट हो गया, एक साइड में फिक्स है, दूसरे साइड में क्या हो गया? फ्री एंड है इसका। ओके, तो फिक्स सपोर्ट के लिए भी हम लोग फिर देखते हैं एफबीडी कैसा आएगा। ओके, तो यहाँ पे सपोज आपका एक फोर्स अब दिखा दो, दिस इज योर वन फोर्स F1, दिस इज योर फोर्स F2। ओके, देखो ये आपका फोर्स हो गया F1, ठीक है, और ये आपका फोर्स हो गया F2। ठीक है, नाउ this is again distance we are showing as 2 meter, this distance is again 2 meter, and this distance is again 2 meter। ठीक है, तो now in this case you tell me what all reactions you will get। FBD इसका कैसे आएगा बताओ, बोलो। ये पहले हम लोग जो बीम है वैसा बना देते, ठीक है।
बीम बना दिया मैंने जैसा था, जैसा बेसिक डायग्राम है। ओके, बीम बनाने के बाद आपको क्या करना है, एफबीडी में जो भी एग्जिस्टिंग फोर्सेस है वो दिखा दो। तो आपका एग्जिस्टिंग फोर्स पहला कौन सा है, यहाँ पे F1 है, ठीक है। एग्जिस्टिंग फोर्सेस F1 है। दूसरा एग्जिस्टिंग फोर्स क्या है आपका, एग्जिस्टिंग फोर्स F2 है, बराबर है। F1 F2 देखो, ये दोनों एग्जिस्टिंग फोर्स है। इसके बाद में आप मेरे को बोलो, जब भी हम लोग ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बॉडी नीचे के डायरेक्शन में जाएगा क्या, नहीं सर। ये मूवमेंट होएगा क्या, यहाँ से होएगा, इधर से नीचे जाएगा, नो सर। नहीं जाएगा ना। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पूरा का पूरा बॉडी, अगर ये कोई बीम है, कंक्रीट है, दीवार पे फिक्स है, तो नीचे जाएगा क्या, No, sir. नो सर। नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, तो रिएक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन आएगा आर वाई, वो बराबर है कि नहीं बोलो। रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ऊपर से जब भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू मूव अलोंग द वाई डायरेक्शन, ओके, इट इज फिक्स्ड एट दिस एंड, ड्यू टू दैट रीजन इट विल नॉट मूव अलोंग वाई डायरेक्शन, यस और नो, ओके। नेक्स्ट, इफ यू अप्लाई अ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, देखो यहाँ से अगर हम लोग इसको मारते हैं, Sir, ये मूव your होगा voice क्या, is बोलो lacking. मूवमेंट होएगा कैसा। आई थिंक ना दिस प्रॉब्लम इज ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम, इधर कॉलेज का इंटरनेट थोड़ा स्लो है। आपको आ रहा है आवाज अभी? यस सर। अच्छा सर, देखो। जैसे फोर्स F1 और F2 जब लग रहा है, हम्म, तो जैसे उन्होंने कहा कि अगर नेल होता है तो नेल तो सर रोटेट हो जाता है, उसपे सर टॉर्क लगता है ना तब तो। नेल रोटेट नहीं होता है। आपने एक बार नेल को मतलब फिक्स कर दिया वॉल के अंदर, ठीक है, फिर उसके ऊपर आप कुछ भी लगाओ नेल के ऊपर, तो रोटेट थोड़ी होएगा। लेकिन सर अगर एक लिमिट, उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो सर तो वो रोटेट कर जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, अगर सपोज एक बड़ा सा नेल है, ठीक है, आपने एक हैमर से उसको अंदर दीवार के अंदर डाल दिया नेल को, ठीक है, आप उसके बाद वो नेल पे कुछ भी हैंग कर सकते हो ना। तो ये हैंग कर रहे हो मतलब आप ये फोर्स F1 F2 अप्लाई कर रहे हो उस पर, आ रहा है समझ में। जो नेल है, एक बार आपने सपोज एक हैमर से उसको जोर से मारा और दीवार के अंदर एक बार चला गया वो नेल, ठीक है, तो उसके बाद आप कोई भी उस पर कपड़ा चुकाओ, ये चुकाओ, यू नो, इट विल नॉट गो डाउन इन दी वाई डायरेक्शन, इट विल गो और नॉट, इट विल नॉट गो। तो यहाँ पे देखो, आपको रिएक्शन क्यों आ रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। रिएक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी आपने एक बार वो नेल को अंदर डाल दिया वॉल के अंदर, देन आफ्टर दैट इट इज नॉट गोइंग टू मूव अलोंग द वाई डायरेक्शन। आप जो भी उस पर हैंग करोगे वो रहेगा, बराबर है। कोई भी आप प्लास्टिक का बैग हैंग करो, कुछ भी हैंग करो वॉल पे, यू कैन हैंग ना, फोटो फ्रेम एंड ऑल। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देख सकते हो आप। नेल का आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया हो, करेक्ट। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो, तो अभी हम लोग अगर एक्स डायरेक्शन में, इधर अभी आपका वॉल है, अब हम लोग ने एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया तो ये मूवमेंट होगा क्या एक्स में, बोलो। विल दिस बीम मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन? नो सर। No, sir. No ना, that means you are going to get a reaction along x direction also, yes or no, बोलो, agreed or not? Yes, sir. तो यहाँ, हाँ, तो आपको यहाँ पे भी रिएक्शन आएगा along x direction, that is rx। देखो बराबर है कि नहीं, बोलो। तो rx और ry आ गया आपका, ठीक है। अच्छा अभी देखो, मैं अभी अपने वीडियो पे जा रहा हूँ, देखो, यू कैन सी मी नाउ। Yes, देखो sir. दिख रहा है आपको, ये पेन दिख रहा है। लास्ट टाइम Yes, sir. देखो हिंज सपोर्ट में ये ऐसा था, ये ऐसा मूवमेंट हो रहा था, ऐसा जा रहा था, ऐसा मूवमेंट हो रहा था, करेक्ट। इट वाज मूविंग लाइक दिस। हिंज सपोर्ट में ये पिन कनेक्टेड रहता है ऐसा, तो इट वाज अलाउड टू मूव, यू नो, लाइक दिस, मूवमेंट था इसमें। लेकिन अभी फिक्स सपोर्ट में मैंने ऐसा फिक्स कर दिया इसको, ठीक है।
तो अभी अगर हम लोग ऐसा अप्लाई कर रहे फोर्स तो ये घूम नहीं रहा है, देखो यहाँ से फोर्स अप्लाई कर, इट इज नॉट मूविंग, फिक्स कर दिया ना हम लोग ने वॉल में, इसको फिक्स कर दिया ये बीम को. सो नाउ इफ आई अप्लाई द फोर्स इट इज नॉट मूविंग अलोंग वाई डायरेक्शन, यहाँ से भी मूव नहीं हो रहा है, देखो एक्स से भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा तो इधर मूव नहीं हो रहा है, बराबर है, अग्रीड और नॉट. तो लास्ट इसमें जब हिंज सपोर्ट था तो वो मूवमेंट था उसमें, लेकिन इसमें जब भी आप फिक्स कर दिया तो इसका मूवमेंट भी आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना मूवमेंट. बोलो बराबर है कि नहीं, मूवमेंट क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया. तो अगर ये घूमता था, समझो हम लोग ये फोर्स अप्लाई कर रहे, तो इफ इट वुड रोटेट, तो कौन से डायरेक्शन में ऐसा रोटेट होता था, क्लॉकवाइज होता है ना रोटेट, अगर ये रोटेशन रहता है इसमें तो, बराबर है कि नहीं. इफ दिस बीम इज गोइंग टू रोटेट इट विल रोटेट along this direction clockwise after the application of force. तो ये रोटेशन हम लोग ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसको फिक्स करके रोटेशन हम लोग ने ब्लॉक कर दिया. तो ड्यू टू दैट रीजन वी आर गोइंग टू गेट अ रिएक्टिव मूवमेंट. ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा दैट इज द रिएक्टिव मूवमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, तो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. देखो ये मूवमेंट जो रहेगा, this reactive movement is along y direction. okay, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए. देखो यहाँ पे, बोलो ये बराबर है कि नहीं, मूवमेंट का रिएक्शन क्यों आया ये समझा, इन सपोर्ट में क्यों नहीं आया था ये समझा आपको, और इसमें क्यों आया ये समझा, बोलो अग्रीड और नॉट. पर बार बताओ ना सर मूवमेंट कैसा है. देखो पहले केस में क्या हो गया, पहले केस में हिंज सपोर्ट में वो रोटेशन था, आप समझ रहे हो, हिंज सपोर्ट में रोटेशन था उसमें, इसमें आपने रोटेशन को ब्लॉक कर दिया. देखो वापस देखो, पहले केस में ये हिंज सपोर्ट में ऐसा है, पिन कनेक्टेड है, तो ये ऐसा और ऐसा मूवमेंट हो रहा था, इसमें ऐसा मूवमेंट है इसमें, बराबर है, मतलब इसमें रोटेशन अभी तक ब्लॉक नहीं किया आपने, ये रोटेट हो सकता है बॉडी. आपने क्या किया, रोलर सपोर्ट लगा दिया, ऊपर से फोर्स अप्लाई करेगा तो नहीं जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया तो इट इज गोइंग टू मूव, समझ रहे हो, हिंज सपोर्ट में. बट इन द फिक्स सपोर्ट व्हेन यू फिक्स द बॉडी लाइक दिस, ओके, नाउ आई हैव फिक्स्ड द बॉडी, सो इफ आई अप्लाई द फोर्स लाइक दिस और लाइक दिस, हियर वी हैव ब्लॉक्ड द रोटेशन, हम लोग ने रोटेशन को ब्लॉक कर दिया. So due to that reason we are getting a reactive movement in the opposite direction. जो डायरेक्शन में इसका मूवमेंट रहेगा ना, उस डायरेक्शन में, मतलब अगर हम लोग ने फोर्स ऐसा अप्लाई किया, ऊपर से अप्लाई किया, तो इट्स रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज. तो इसका रोटेशन हम लोग ने ब्लॉक कर दिया, तो रिएक्टिव मूवमेंट कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा. अभी ये समझा कि नहीं समझा, बोलो. यस सर. रिएक्टिव मूवमेंट क्यों आ रहा है समझा, रोटेशन ब्लॉक किया ना इसलिए आ रहा है. ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट होता था, क्लॉकवाइज होता था, तो हम लोग ने उसका रोटेशन ब्लॉक कर दिया, तो रिएक्टिव मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो. अरे बोलो बोलो, यस सर. अरे बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को. यस नो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये पूरा आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पूरा यही है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है. Okay, now so in this one more thing I will add, that is the self weight of the beam. Self weight of beam. Self weight वापस 10 kg दिया हुआ है. ओके, तो 10 kg दिया है तो टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है. 6 का हाफ किधर, इधर किधर आएगा, यहाँ से ऐसा हम लोग दिखाएंगे. देखो ये सेल्फ वेट यहाँ से आएगा, 10 kg दिया है तो 10 इंटू 9.8, 10 इंटू 9.8, ठीक है, ये न्यूटन में आ गया. अच्छा, डिस्टेंस कितना रहेगा ए से, दिस इज योर ए, पॉइंट ए है ये वाला, ए से डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 मीटर. यस और नो, बोलो. यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना रहेगा, 3 मीटर, और इधर से भी डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, 3 मीटर.
देखो बराबर है कि नहीं बोलो। ये क्लियर हो गया आपको? 3 मीटर दोनों तरफ से आएगा। ये एफबीडी समझे sir. सबको? यस सर। ये फोर्स निकाल दो, ये फोर्स मत बनाओ, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आर एक्स आएगा। ठीक है, सर हंग सपोर्ट में मूवमेंट था कि नहीं? कौन सा हिंज सपोर्ट में? हंग सपोर्ट, हाँ। हिंज में ना, हिंज में मूवमेंट था, हिंज में मूवमेंट आएगा लेकिन रिएक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो आपको एक ही चीज याद रखना है, अभी रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन देखा आपने? इन रोलर सपोर्ट हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? 1 रिएक्शन रोलर सपोर्ट में। रोलर सपोर्ट में कितना रिएक्शन आ रहा है? ओनली 1 रिएक्शन इन रोलर सपोर्ट। कौन सा? अलोंग वाई डायरेक्शन आ रहा था, बराबर है। मैंने आपको टॉय कार का एग्जांपल दिया, छोटा वाला बच्चे लोग का जो गाड़ी रहता है, उसमें एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वो, लेकिन वाई में अगर आप ऊपर से फोर्स अप्लाई करोगे तो नीचे नहीं जाएगा। सेकंड, आपने कौन सा वाला बताया था मैंने? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस आर 2, ओके, 2 रिएक्शंस इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट। Okay, and number of reactions are 3. Number of reactions are 3 in case of fixed support. ठीक है, देखो ये 3 चीज याद रखो। हिंज में 2 रिएक्शन आता है, फिक्स्ड में 3 रिएक्शन आता है, एक्स वाई और मूवमेंट भी आता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया पूरा? बोलो। मूवमेंट भी रिएक्शन ही है। मूवमेंट इज अ रिएक्शन ना, रिएक्टिव मूवमेंट है ये। जो भी डायरेक्शन आपने ब्लॉक कर दिया ना, उधर आपका रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, यस सर। ओके, इसको एक इरेज कर देते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। Actually today, due to this internet problem now, it's facing too much of difficulties to draw. Just a minute, I will give you one problem. I think it's time up ना, almost 10:13 हो गए। Yes, sir. यस सर। So today we have seen all the concepts. अपना equilibrium is almost over. Now next lecture we will solve the problems for equilibrium. Okay, so this chapter will get over by this week. Okay.